guys, so I'm here with another video. Today you will learn about the low level design of snake and ladder game, and this will be the most easiest design so far of all my videos. So the prerequisite for this is singleton pattern and flyweight pattern. So I will put the link in description for both the patterns. You can also check out my channel page to get the list of all design patterns I have explained there and the practice problems. So first I will give you an overview of what flyweight pattern is, what problem it solves, and sometimes instead of literally using it, we figuratively using it. What does that mean? That means the problem which flyweight pattern solves, there are ways to, you have a design, you have to incorporate it as a flyweight design. There are some steps which I have explained in my video, but it's more of a memory optimization technique. So it's not like there are some set of specific steps that only you need to do, unlike strategy pattern or factory or singleton. So flyweight solves some problem which you can solve in different ways. It's just that if you do that memory optimization, it is called as flyweight. So I'll give you an overview of what flyweight is. You can also watch my video of flyweight pattern. There I have explained it through tic-tac-toe game. Okay, so the problem which this pattern solves is simply, suppose mostly in these type of questions where you have to design a game, snake ladder, tic-tac-toe, chess, etc., you can use this pattern. So suppose for example this is the snake ladder game, okay, and suppose there are multiple users, okay, and in this snake ladder game somewhere you will have snakes, okay, and at some places you will have ladders. Okay, now in the question requirement it has been said that this game setup is predefined for everyone. So if this user wants to play a game, he will get the same setup, same set of these 3 snakes, 2 ladder. This user will get the same, this user will get the same. Okay. So if you won't use the flyweight pattern technique, what will happen is that when this user will want to play the game, the object of this game will be created in the memory in the backend for this user. Similarly, another object will be created for this user, another object will be created for this user. So if millions of users will come in memory simultaneously, millions of objects will be created for the game. But do we really need to do that? Because everyone will be having the same setup, right? So what flyweight pattern says that we can optimize this memory, we can have a shared object. तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा इस गेम का जिसको सारे यूज़र शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंगलटन मेथड यूज़ करके इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे मैं कोड में अभी आपको बताता हूँ। तो जब भी देखो, पहचानने का तरीका ये है कि क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन हो कि डिज़ाइन शुड बी एबल टू हैंडल मिलियंस ऑफ कंकरेंट यूज़र, तो दिमाग में पहली चीज़ ये डालना कि ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन आ सकता है, उसको कहीं पे भी अवॉइड करना है। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन क्या होता है, ये मेरे फ्लाईवेट सिंगलटन या फ्लाईवेट पैटर्न का वीडियो देखना, उसमें पता लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो चलो यार, मेरा एक और वीडियो है कि हाउ टू अप्रोच एनी लो लेवल डिज़ाइन क्वेश्चन। वहाँ पे मैंने आपको कुछ सेट ऑफ स्टेप्स बताए हैं, वो जनरल स्टेप्स हैं किसी भी लो लेवल डिज़ाइन के क्वेश्चन के लिए। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था कि कोई भी जो स्टेप 1 होता है ना, वो होता है एंटिटी सोचना। उसके पहले एक बार मैं जल्दी से प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ। गेम शुड बी प्लेड ऑन अ बोर्ड विद नंबर्ड सेल्स। तो 1 से लेके 100 तक नंबर सेल्स होंगे उसमें, ठीक है। और द बोर्ड शुड हैव अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्नेक्स। देखो ये लाइन तुम्हें बताती है प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्नेक्स, मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक यूज़र आया,
उसके लिए अलग सेटअप होगा, दूसरा यूज़र होगा उसके लिए अलग सेटअप होगा, सेम ही सेटअप होगा, ठीक है, सेम सेट ऑफ स्नेक एंड लैडर होंगे। गेम शुड सपोर्ट मल्टीपल प्लेयर, ये तो होता ही है यार, एक गेम में 10 लोग भी खेल सकते हैं, 20 लोग भी खेल सकते हैं, या अलग अलग गेम बना के भी खेल सकते हैं, ठीक है। प्लेयर शुड टेक टर्न्स रोलिंग अ डाइस, इसका मतलब पहले ऑब्वियसली पहले प्लेयर की चांस आएगी, दूसरे की आएगी, तीसरे की आएगी, चौथे की आएगी, पांचवे की आएगी, फिर पहले की आएगी, है ना। प्लेयर शुड टेक टर्न्स रोलिंग अ डाइस टू डिटरमाइन नंबर ऑफ सेल्स टू मूव फॉरवर्ड, नॉर्मल है, डाइस फेंकेगा, जितना आएगा उतना आगे बढ़ेगा, अगर उस पर स्नेक या लैडर हुआ तो फर्दर मूवमेंट होगा। इफ़ अ प्लेयर लैंड ऑन अ सेल विद हेड, वही कहानी है, इफ़ अ प्लेयर लैंड ऑन सेल वही कहानी है। द गेम शुड कंटिन्यू अंटिल वन ऑफ द प्लेयर रीचेज द फाइनल, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ इन्होंने स्पेसिफाई नहीं की, बट ये जो विनिंग होता है ना वो इस तरह का होता है कि एग्जैक्ट 100 पे ही लैंड होनी चाहिए आपकी डाइस, 100 के मान लो आप 98 पे हो, आपका 5 आ गया, तो 100 पार जाके 103 बोल के नहीं बोलोगे कि आप मैं मैच जीत गया, 100 पे ही लैंड होना चाहिए 100 पे, ठीक है। गेम शुड हैंडल मल्टीपल सेशंस कंकरेंटली, ठीक है, अलाउइंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लेयर टू प्ले इंडिपेंडेंटली, मतलब इस यूज़र की डिवाइस पे 10 लोग खेल सकते हैं, यहाँ से 10 लोग खेल सकते हैं, यहाँ से 10 लोग खेल सकते हैं, मतलब ये बोर्ड है ना, ऐसे मान लो 5 अलग अलग गेम बने होंगे, मतलब 5 लोग बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट तो एक ही बनेगा, बट ये पहला ग्रुप है इसमें 5 लोग हैं, दूसरा ग्रुप है उसमें 8 लोग हैं, तीसरा ग्रुप है उसमें 3 लोग हैं। तो इस सेट में से एक विनर डिसाइड हो जाए, इस सेट में से एक विनर डिसाइड हो जाए, इस सेट में से एक विनर डिसाइड हो जाए, ठीक है, ये करना है। तो मेरा हाउ टू अप्रोच लो लेवल डिज़ाइन के वीडियो उसमें मैंने स्टेप बताया था। पहला स्टेप होता है एंटिटी सोचना, तो देख के आप समझ जाओगे एक्चुअली ये एंटिटी सोचने वाली जो चीज़ होती है ना, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आती है। 5-6 वीडियोज़ आप देखोगे लो लेवल डिज़ाइन के, तो अगले जो वीडियो देखोगे उसमें जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी अपने आप सोचने लग जाओगे कि ये एंटिटीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है, रटने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। और डिज़ाइन कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां इस डिज़ाइन को अपने जो भी सिस्टम के डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव करती हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि ये क्वेश्चन मेटा में पूछा गया था, ऊबर में पूछा गया था, पर्सनली मुझसे वीज़ा में पूछा गया था, ठीक है, SD2 पोजीशन के लिए, SD2 सीनियर SD2, ठीक है। तो एंटिटीज़ और हाँ ठीक है, और एंटिटीज़ ये होंगी, पहला तो होगा सेल, बोर्ड के अंदर जो 1 से लेकर 100 तक नंबर है वो सब सेल से रिप्रेजेंट होंगे, बोर्ड, प्लेयर, डाइस। अब डाइस का मैंने अलग से क्लास इसलिए रखा है क्योंकि ये शकुनी वाली डाइस भी हो सकते हैं, इसमें पर्टिकुलर नंबर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, कुछ भी ऐसा, आप जो भी लॉजिक है आपका रैंडम नंबर जनरेट करने का वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो सकता है कोई ऐसा फंक्शन हो जो एकदम ही इक्वल प्रोबेबिलिटी लाता हो, कोई ऐसा नंबर हो जिसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम ज़्यादा हो, किसी नंबर की 1 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, 4 की ज़्यादा हो, 6 की ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए डाइस क्लास को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। या डाइस ऐसी भी हो सकती है कि मान लो मैं चाहता हूँ कि एक डाइस होगी वो उसमें 12 साइड्स होंगी 6 की जगह, ठीक है। उसके बाद जैसे पुराने ज़माने में रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड के फॉर्म में डाइस होती थी तो उसमें 4 ही फेस होते थे, है ना। और ये होगी गेम की स्टेट, गेम की स्टेट मतलब गेम स्टार्ट हुआ है कि नहीं, प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं, फिनिश हुआ है कि नहीं, ठीक है। स्टेप 2 था मेरे हाउ टू अप्रोच लो लेवल डिज़ाइन के वीडियो में सर्विस फंक्शन सोचना। तो सर्विस फंक्शन ना ये तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही समझ में आएगा। अब स्नेक एंड लैडर का जो गेम है उसमें क्या ही हो सकता है, यूज़र क्या एक्शन ले सकता है, गेम को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, अपनी टर्न खेल सकता है, और जो भी टर्न का रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से मूव कराना होगा प्लेयर की पोजीशन को, प्लेयर अभी 1 पे है तो उसको 8 पे ले आओ, जो भी है चेक करो कि क्या कोई 100 पे आया है, मतलब ये प्लेयर विन हुआ है चाल चलने के बाद। उसके बाद चेक गेम को एंड करने का हो सकता है, कोई प्लेयर 100 पे आ गया तो गेम को एंड करना है, तो इतनी सर्विसेज लगेंगी, ठीक है। अब मैं एक बार जल्दी से क्लास डायग्राम बताता हूँ, बहुत ही सिंपल छोटा सा क्लास डायग्राम है। तो एक तो गेम स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए है, यहाँ पे गेम स्टार्ट हुआ है कि नहीं, प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं, फिनिश हुआ है, ये मेन गेम सर्विस क्लास होगी। तो जब भी कोई यूज़र नया गेम बनाना चाहेगा या गेम में कोई चाल चलना चाहेगा या आगे बढ़ाना चाहेगा, पीछे बढ़ाना चाहेगा, सांप से कटवाना है, सीढ़ी से कूदाना है, तो ये सारा गेम सर्विस क्लास मैनेज करेगी, ठीक है। डाइस की अलग क्लास है, ऊपर मैंने बता ही दिया। प्लेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्लास है बोर्ड। ये जो बोर्ड है ना ये प्री डिफाइंड है, जो शेयर होगा हर जगह पे, और इसी बोर्ड के अंदर आपको प्लेयर को मूव कराना है, डाइस रोल कराना है, सब कुछ करना है। सर्विस क्लास इस बोर्ड पे ऑपरेट करेगी, ठीक है। और ये सेल होंगे उस बोर्ड के अंदर। अच्छा सिंगलटन का मेरा वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा क्लास को हम लोग सिंगलटन क्यों बनाते हैं। 2 ही रीज़न होते हैं कि जब भी कोई ऐसा सर्विस फंक्शन है जो किसी शेयर्ड स्टेट में ऑपरेट कर रहा हो, मतलब
कोई सर्विस फंक्शन है जिसके अंदर आप किसी डेटा मेंबर को की वैल्यू चेंज कर रहे हो, ठीक है, और वो डेटा मेंबर जो है ना वो शेयर्ड स्टेट में है, मतलब मल्टीपल यूज़र एक साथ आके उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू। तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी को बचाने के लिए यूज़ करते हैं सिंगलटन। दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन को बचाने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो सर्विस फंक्शन है वो किसी शेयर्ड स्टेट पे ऑपरेट ना कर रहा हो, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कंकरेंटली 1 मिलियन यूज़र आ गए और वो 1 मिलियन के 1 मिलियन उस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। तो फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग सिंगलटन यूज़ करते हैं। कुछ नहीं है, स्टैटिक कीवर्ड का खेल है। मेरा सिंगलटन का पैटर्न का वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे हम लोग सिंगलटन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो कोड पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक इनम बनाया है गेम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, नॉट स्टार्टेड इन प्रोग्रेस फिनिश्ड। फिर ये प्लेयर नाम की क्लास है, इसमें प्लेयर का नाम होगा, हर प्लेयर की पोजीशन होगी, अभी 1 नंबर पे है, 2 पे है, 100 पे है, कहाँ पे है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंस्ट्रक्टर है, ये उसके गेटर्स हैं, ये सेटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जंप है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम देखोगे तो स्नेक क्या है, स्नेक का हमेशा जो स्टार्टिंग सेल होगा वो उसका हेड होगा जो हमेशा ऊपर होगा बड़े नंबर पे, और जो टेल होगी वो छोटे नंबर पे होगी। उल्टा सांप तो कभी होता नहीं है गेम पे, है ना, कि नीचे से कटवाओ ऊपर पहुंचा दिया, कि 5वें पे उसका हेड है और 98 पे उसकी टेल है, तो 5वें पे पहुंच के कटवाया और टेल ने ऊपर पहुंचा दिया। सांप हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। और जो लैडर है, लैडर कैसी होती है, लैडर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो छोटा नंबर होता है, एंडिंग पॉइंट बड़ा नंबर होता है। तो मैंने यहाँ पे ना स्नेक और लैडर को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग क्लासेस नहीं बनाई हैं, क्योंकि बेसिकली दोनों हैं क्या, दोनों पेयर ही तो हैं एक इंटीजर के। एक दोनों में क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। स्नेक के केस में स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा होगा एंड से, स्टार्टिंग समवेयर अराउंड मान लो 26 है, एंड है 12, तो 26 पे कटवाएगा, 12 पे ले आएगा। लैडर में उल्टा होगा, लैडर में जैसे होगा 3 है स्टार्टिंग पॉइंट, 28 है एंड पॉइंट, 3 से स्टार्ट करेगा, 28 पहुंचा देगा। तो उन दोनों को ही मैं जंप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दोनों में देखो स्टार्ट है और एंड है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि तो जंप है ना, मतलब जो गेम बोर्ड बनेगा उसमें स्नेक्स कहाँ कहाँ पे है, लेडर्स कहाँ कहाँ पे है, ये प्री डिफाइंड है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ फाइनल कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे ना आप, रन टाइम पे कोई बोले कि यार मेरे को ये सीडी चेंज करवानी है, तो कोड एरर दे देगा। मान लो आप बोलो कि ये सीडी अभी 3 से स्टार्ट हो रही है, 12 पे एंड हो रही है, मैं इसको 8 पे स्टार्ट करके 29 पे एंड कराना चाहता हूँ, तो वो ना हो पाए, इसलिए मैंने यहाँ फाइनल कीवर्ड यूज़ किया है। एक एक्स्ट्रा चेक लगाया है कि प्री डिफाइंड, क्योंकि स्नेक एंड लैडर है तो कोई भी इनकी पोजीशन चेंज ना कर पाए। ये उसकी गेटर सेटर है। डाइस की क्लास कुछ ऐसी है जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 से लेके 6 तक ही नंबर आने चाहिए। कल को डाइस का नया टाइप आ गया, 2 से लेके 12 तक नंबर लाने हैं, जो भी है आप कर सकते हो। और फिर उसमें एक लॉजिक लिख दिया रोल करने का। अब यहाँ पे ये तो इक्वल प्रोबेबिलिटी दे रहा है हर एक नंबर के आने की। अब कल को मान लो आपको इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं रखनी है, कुछ और तरह से करना है कि 1 को आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 3 को आने की ज़्यादा है, 4 को आने की ज़्यादा है। या फिर आप गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोल सकते हो कोई यूज़र अगर 50 के ऊपर है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि गेम स्टार्ट हुआ, उसमें सारे प्लेयरों ने एक एक चाल चली, जब सारे प्लेयर 5-5 चाल चल लेंगे उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी चेंज करना चाहता हूँ डाइस की, ठीक है। तो वो सब आप इस फंक्शन में डिफाइन कर सकते हो। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप यहाँ तो चेंज नहीं करोगे, बेसिकली आपको डाइस को रोल करने की मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी जिसको आप इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट कराओगे। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप जा सकता है, बट पता है ये क्या होता है इंटरव्यू में, जब आप ये पूरा कोड इंप्लीमेंट कर लोगे ना, तब यूज़र अगर टाइम बचा तो इंटरव्यूअर इस तरह की चीज़ें लेके आएगा कि डाइस के रोल कराने का लॉजिक मैं चेंज कराना चाहता हूँ। वो सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि आपको स्ट्रेटजी पैटर्न के बारे में पता है कि नहीं। तो इसलिए मैं बीच बीच में ये चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे थ्योरी के वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ना इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा मूव हो रहा है। अभी क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन देगा जिसको आप जल्दी से इंप्लीमेंट कर दोगे, उसके बाद असली धमाके चालू होंगे जब वो इंटरनल चीज़ें पूछेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन होती तो क्या करते, ये होता तो क्या करते, ठीक है। डाइस क्लास हो गई। उसके बाद ये गेम बोर्ड क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट शेयर्ड होगा सारे यूज़र्स के लिए, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बोला, सिंगलटन बनाना है। और मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सकेलीड्रॉ में आपको समझाया था कि सिंगलटन बना के इस क्लास को हम लोग फ्लाईवेट का जो मोटिव है मेमोरी को शेयर्ड कराना, वो हम अचीव करते हैं।
तो सिंगलटन पैटर्न का वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि दो तरीके से हम लोग मतलब सिंगलटन बनाते हैं क्लास को। पहला तो उसी क्लास के टाइप का एक स्टैटिक डेटा मेंबर बना देते हैं, उसका नाम इंस्टेंस रख दो, आप कुछ भी दे सकते हो, नॉर्मली रूल ये है कि इंस्टेंस नाम दे दो, और फिर एक गेट इंस्टेंस फंक्शन बना दो। तो गेट इंस्टेंस फंक्शन सिर्फ इतना चेक करता है कि इंस्टेंस में कोई वैल्यू है कि नहीं, अगर वो नल है तो नया ऑब्जेक्ट यहाँ बनाओ, अदरवाइज पुराना ही रिटर्न कर दो। अब इसको सिंगलटन की तरह यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, क्लाइंट कोड पे कभी भी न्यू गेम बोर्ड ऐसे नहीं लिखेंगे, न्यू कीवर्ड यूज़ करके गेम बोर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, गेम बोर्ड डॉट गेट इंस्टेंस, ये स्टैटिक फंक्शन है इसलिए गेट इंस्टेंस कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए। तो अब देखो इंटरव्यू में ये भी आजकल थोड़ा शिफ्ट हो रहा है कि वो आपको लिखा लिखाया कोड स्निपेट दे देगा लो लेवल डिज़ाइन में और बोलेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ उसने सिंगलटन बनाया है, बट जो क्लाइंट कोड होगा वहाँ पे वो न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहा होगा, तो आप बोलोगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। बट एक्चुअली में वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई क्लास अगर सिंगलटन है तो उसके लिए कभी भी न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं करते, है ना। तो देखो अब इस गेम बोर्ड क्लास को सिंगलटन कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया, क्यों बनाते हैं मेरा वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली शेयर्ड स्टेट ये मैप है, उसी की वजह से इसको सिंगलटन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैप है ना, ये देखो ये क्या बता रही है, इंटीजर से जंप का मैप है। जंप क्या थी, जंप कैन बी स्नेक और लैडर। जंप क्लास बेसिकली उसमें दो डेटा मेंबर थे, स्टार्ट और एंड, जो आपको बताता है कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचाएगा ये जंप का जो ऑब्जेक्ट है। स्नेक होगा तो ऊपर से नीचे लाएगा, लैडर होगी तो नीचे से ऊपर पहुंचाएगी। और ये मैप में इंटीजर 1 से 100 तक नंबर होंगे, जिसमें आप स्नेक लैडर डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो जैसे ऐड जंप नाम का एक फंक्शन है, उसमें मैं पास करूँगा ये दो वैल्यू। तो अब देखो ये स्टार्ट छोटा है एंड बड़ा है, तो ये लैडर की तरह काम करेगा, ठीक है। वही यहाँ पे 99 मतलब स्टार्ट बड़ा है एंड छोटा है, तो ये स्नेक की तरह काम करेगा, ठीक है। उसको मैंने मैप में स्टोर करा लिया है, ठीक है। अब आते हैं गेट इंस्टेंस में पहले ही बता चुका हूँ सिंगलटन बनाने का तरीका है। ऐड जंप फंक्शन जो ऊपर हम लोग अभी ये कॉल कर रहे थे, उसका यहाँ पे कुछ नहीं करता है, बस ये जंप्स नाम का जो मैप है उसमें जाके स्टार्ट और स्टार्ट जो वैल्यू है उसको पुट कर देता है, और ये है ना मैप तुम्हारा इंटीजर टू जंप, ठीक है। तो जब ऐड जंप कॉल करोगे तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे की बनाएगा और वैल्यू बनाने के लिए जंप का ऑब्जेक्ट बनाने का स्टार्ट एंड का, ठीक है। गेट नेक्स्ट पोजीशन फंक्शन क्या करता है, करंट पोजीशन तुम पास करोगे, चेक करेगा कि वहाँ पे कोई सांप या सीढ़ी है, तो यहाँ पे चेक कर लेगा मैप में और फाइंड करेगा कि क्या इस पोजीशन के लिए कोई की है। अगर है तो उस की पे या तो सीढ़ी होगी या तो सांप होगी, वो आदमी को कहाँ पहुँचाएगी ये उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए देखो क्या कर रहा है, जम्स डॉट गेट पोजीशन, यहाँ पे की आ गई और उसका डॉट गेट एंड, ये तुम्हें क्या देगा, ये तुम्हें जंप क्लास का ऑब्जेक्ट देगा। इंटीजर से जंप क्लास के ऑब्जेक्ट की मैपिंग है, तो जम्स डॉट गेट पोजीशन किया तो ये तुम्हें क्या देगा, जंप क्लास का ऑब्जेक्ट देगा, उसका डॉट गेट एंड फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। तो मैं नीचे बताऊंगा जंप क्लास के अंदर, ये देखो जंप क्लास के अंदर गेट एंड फंक्शन था जो एंड दे देता है तुम्हें, ठीक है। गेट स्टार्ट फंक्शन स्टार्ट दे देता है, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लॉजिक है, तुम्हें पता लग जाएगा, वीडियो पॉज करके देखना। तो यूज़र जब भी अपनी डाइस चलेगा नई पोजीशन पे जाएगा तो हमेशा हम गेट नेक्स्ट पोजीशन कॉल करेंगे, इससे पता लगाएगा कि उस पोजीशन पे कोई सांप या सीढ़ी है कि नहीं। अगर है तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, बुला के यहाँ से रिटर्न कर देगा। फिर ये कोर सर्विस क्लास है, मैंने क्या बताया था कि ये जो बोर्ड है तुम्हारा, इस बोर्ड पे मल्टीपल लोग खेल रहे होंगे, तो उनको खिलाने का लॉजिक सर्विस क्लास के थ्रू होगा, ठीक है। किसको आगे बढ़ाना है, किसकी चाल है, विन कौन कर रहा है, ये सब देखना है, वो सब या गेम का स्टेटस चेंज करना है, सर्विस क्लास के थ्रू होगा। वही सर्विस क्लास तुम्हारी ये सर्विस क्लास है। अब इसमें मैंने ये क्यों यूज़ किया है, मान लो एक गेम में 10 प्लेयर है, तो उन 10 प्लेयर को मैंने क्यू में डाल दिया। अब जैसे ही क्यू का पोल करूँगा तो जो सबसे पहले गया था वो उठेगा, उसकी चाल चलेगी, उसको फिर से वहाँ से रिमूव करके दोबारा क्यू में ऐड कर दूंगा। तो बैक में मतलब क्यू का तुम्हें पता है ना कि फ्रंट से डिलीशन होता है, बैक में चला जाता है। तो ये बेसिकली क्यू यूज़ करके मैं ये इंश्योर करूँगा कि एक एक करके सबकी चांस आए और सारे प्लेयर ख़त्म हो जाए तो फिर अगले की चांस आए, किसी की मिस ना हो। और फिर ये डाइस का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि डाइस के केस में अगर स्ट्रेटजीज हम लोग यूज़ करते हैं, मान लो जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि हम ये चाहते हैं कि जब सारे प्लेयर 5-5 चांस चल लें उसके बाद डाइस की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए। अब छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, बड़े नंबर आने की घट जाए,
तो रन टाइम पे अगर हम डाइस की स्ट्रेटजी बदलवाना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे डाइस नहीं डालेंगे, हम लोग डाइस की स्ट्रेटजी इंजेक्ट करवाएंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो फॉलो अप इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि डाइस एक ही तरह की है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा बराबर रहेगी। गेम की स्टेट इनिशियली ये सर्विस क्लास में होगी। नया जब भी कोई यूज़र खेलना चाहेगा गेम तो स्टेटस यहाँ से डिफाइन होगा, ठीक है। और उसके बाद ये बोर्ड क्लास जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कराई थी उसका ऑब्जेक्ट है, जिसमें तुम्हें सांप और सीढ़ी पता लग जाएंगे कहाँ कहाँ पे क्या है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंस्ट्रक्टर है। प्लेयर्स की लिस्ट आएगी और ये मैं क्यू में उसको डाल रहा हूँ, और जो डाइस है वो न्यू डाइस बना रहा हूँ। गेम की स्टेट नॉट स्टार्टेड है। और ये देखो, अब बोर्ड क्लास सिंगलटन थी तो मैंने न्यू कीवर्ड यूज़ करके गेम बोर्ड नहीं बनाया, जैसे ये न्यू डाइस बनाया मैंने गेम बोर्ड डॉट गेट इंस्टेंस किया है, ठीक है। और एक स्टार्ट गेम फंक्शन है, वो क्या करेगा, स्टेट को इन प्रोग्रेस कर देगा और प्ले मेथड कॉल कर देगा। अब ये प्ले मेथड क्या करता है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि गेम की स्टेट इन प्रोग्रेस है, ठीक है। जब गेम की स्टेट एंड हो जाएगी तब ये रुकेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्लेयर्स का जो क्यू था उसका पोल फंक्शन कॉल किया और सबसे करंट प्लेयर निकाला, ठीक है, जिसकी चांस आनी है। और डाइस का डाइस डॉट रोल फंक्शन कॉल किया तो हमें एक नंबर मिल गया जो भी डाइस का आता है 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जो करंट प्लेयर है उसकी जो गेट पोजीशन है, करंट प्लेयर की हो सकता है 5 पे हो 8 पे हो जो भी है, उसमें ये डाइस का नंबर ऐड कर दिया तो न्यू पोजीशन आ गई। अब न्यू पोजीशन अगर ग्रेटर देन 100 है तो उसको हमें वहीं रोक देना है ना। तो बस सिस्टम प्रिंट अलाउन करा के बता दिया कि एक्सीड कर रही है, हम यहीं रोक रहे हैं तुमको। अदरवाइज हो सकता है जो रोल करने के बाद नई पोजीशन आई है वहाँ पे कुछ सांप हो या सीढ़ी हो, तो ये जो बोर्ड क्लास थी उसका गेट नेक्स्ट पोजीशन फंक्शन कॉल किया था, मतलब कॉल करेंगे और उसमें नई पोजीशन डाल देंगे। अब ये जो बोर्ड क्लास का गेट नेक्स्ट पोजीशन फंक्शन है वो क्या करता है, वो सिंपली जो भी पोजीशन आती है चेक करता है कि वहाँ पे कोई सांप या सीढ़ी है कि नहीं। कैसे चेक करता है, ये जम्स नाम का मैप था जो सांप सीढ़ी को रिप्रेजेंट करता था, ऐसे हमने बनाया था, वहाँ पे चेक कर लेता है कि इस पोजीशन में कोई सांप या सीढ़ी है कि नहीं। वीडियो को पॉज करना, पता लग जाएगा आपको कैसे इसका लॉजिक लिखा हुआ है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सिंपली मैप में जाके हम लोग देख लेते हैं कि कोई की है कि नहीं, ठीक है। तो जो भी न्यू पोजीशन आती है उसको यहाँ पे सेट कर देते हैं करंट प्लेयर के लिए, ठीक है, और बता देते हैं कि प्लेयर यहाँ मूव किया है। नई पोजीशन अगर 100 होती है तो उसको जितवा देते हैं, गेम की स्टेट फिनिश कर देते हैं, गेम को ब्रेक कर देते हैं। अदरवाइज जो प्लेयर्स नाम का क्यू था, भाई अभी तो ये प्लेयर की चांस आई है, इसका डिलीशन हुआ है फ्रंट से, तो दोबारा उसको ऐड कर दिया रेयर में ताकि बाकी सारों की चांस आने के बाद फिर से इसकी चांस आए, ठीक है। ये ड्राइवर क्लास है यार। तो अब ड्राइवर क्लास का वॉक थ्रू देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं बता दूंगा इतना सिंपल सा कोड है, छोटा सा एक वॉक थ्रू मैंने तुमको दे दिया है। बस यही था यार हमारा स्नेक लैडर का गेम। अगर आपका रिसेंट इंटरव्यू हुआ हो और कोई क्वेश्चन आपसे पूछा हो तो वो भी मेरे को बताना, लो लेवल डिज़ाइन या मशीन कोडिंग में, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अलविदा दोस्तों।